My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be studying Class 12, Chapter 2, Self and Personality. So basically what we are going to do in this chapter is that we are going to learn about a lot of aspects about ourselves, about who we are as people, who different people are as different people. So ये बात आपने you must have heard in a lot of daily kind of language that उसकी personality अच्छी है, उसकी या फिर इंटरव्यू में बहुत डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, whether or not you will get a job. So all these aspects of self and personality will be discussed in this chapter. So let's get started with it. So the first one we're going to discuss is the self. Okay. So the concept of self पे आ जाते हैं, which is the first major heading before the actual name of the chapter, which is self and personality. ठीक है. So there is a very good activity given in table 2.1 on page number 25, where they are asking you कि how much you understand yourself. ठीक है. That means they want to know कि define yourself. Who are you? I am dash. I am dash. देख रहे हैं ना आप? The blanks are given. So for example, if I was to define myself, the first thing I would say about probably myself is that I am a woman or I am a girl, right? So this is my aspect of self, my gender, for instance. ठीक है? The next thing I would say is that I am a student, or you would say that you are a student. So this is the next kind of self category that we are defining ourselves into. ठीक है? तो इसमें दो types की identities की बात हुई है. The first one is that of personal identity, and the second one is that of social identity. So, for example, some people might also say that I am hardworking or I am a lazy person, right? So, when you are defining aspects about yourself, that is called personal identity. But when you're talking about social aspects, like, for example, here a good example of religion is given, that I am Hindu or I am South Indian, right? Or I'm North Indian. This is defining a social aspect of the personality. Okay? So, that basically is the social identity. Okay, so एक बार फटाफट से हम definitions भी कर लेते हैं. Personal identity refers to those attributes of a person that make him or her different from others, right? And social identity क्या होती है? Refers to those aspects of a person that link him or her to social or cultural group or are derived from it. So you can kind of notice it as कि जो personal identity है, that will always be a unique thing, right? About yourself. Social identity you will always share with other people. Like if you are a Hindu or if you are a Muslim or if you are a Indian, then you are sharing that identity with different kinds of Indians or different Hindus or different Muslims. Okay, so that is the difference between personal identity and social identity. Now let's move on to our next mini heading, which is self as a subject and self as an object. Okay, इसमें basically आपने English में भी पढ़ा होगा कि what is a subject and what is an object. कहते हैं ना I और ये जो है ये सब चीजें हमारी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कौन सी कैटेगरीज में आती हैं. सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट वन. नाउ इसमें क्या है कि द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट व्हेन बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग दैट फॉर एग्जांपल समवन इज सेइंग दैट आई एम अ डांसर or as an entity on which something is done. I am the one who gets easily hurt. जब ऐसी बात होती है then versus I am a dancer. ठीक है, ये दो बातें इन्होंने यहाँ पर सेल्फ को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करी है. सो लेट्स रीड पैराग्राफ फर्स्ट जो हमारा है इस टॉपिक के अंडर. So you will find that a lot of your friends have either as an entity described themselves that does something. For example, as I suggested before, that I am a dancer or I am one who gets easily hurt. Right? So पहले वाले केस में the self described is the subject. ठीक है, which is I am a dancer because you are doing something. I am a singer. I am a student. मैंने बोला था ना that about myself. What will I say that about yourself? What will you say that you are a student? So you are doing something. When you say I am a student, you are doing the act of being a student. Then you will define yourself as a subject. ठीक है, or in the latter one in which I am the one who easily gets hurt. मतलब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ actively, right? I am just getting hurt. I am being passive. So whenever I am being passive, it will be the object. Okay, so I hope this distinction is clear to you. The next topic we are going to do is the kinds of self. ठीक है, तो again जैसे कि हमने personal और social identity करी है, this concept is very much related to that only कि personal self versus social self. So let's get on to the definition.
personal self leads to an orientation in which one feels particularly concerned with oneself, right? Our own ambition, हमारी अपनी personal traits, like for example, how hardworking we are, how extroverted we are, right? All this will come under the personal self category, okay? Just like personal identity, बिल्कुल उसी की तरह का concept है that we have discussed before, okay? But the social self क्या होता है? It emerges in relation with others and emphasizes aspects of life such as cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support, or sharing. The self values family and social relationships. So when you are defining yourself in terms of, I am this person's daughter, I'm this person's mother, or this person's sister, then it is the social self that you are referring to. या फिर I am a Hindu, जैसे हमने पहले वाला example किया था. You are attaching yourself to a religion that is shared by a lot of different people. So when you are attaching yourself to a common ground in the social context, then you are talking about the social self. Okay. So now let's move on to the next main heading, which is cognitive and behavioral aspects of self. Cognitive से आपको समझ में आ गया होगा, thought वाले aspects, information processing, decision making, ये वाले aspects. और behavioral aspects मतलब the things we enact out, the kind of when we enact our feelings out, when we express ourselves, तब होता है. ठीक है. So इसमें बहुत सारे self से starting concepts हैं, but once I explain them to you, I'm pretty sure that you won't find them any confusing, because आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि एक जो है वो दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी रिलेटेड है, बट कंफ्यूजन में इस हिसाब से नहीं है कि दोनों की डेफिनेशन की बाउंड्रीज जो है वो वीक हो. इट्स वेरी क्लियर कट डिफाइंड एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग दीज. ओके. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द आइडियाज दैट वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स. दैट मीन्स what kind of ideas we hold about ourselves. Now that can be positive also and negative also. ठीक है. तो मतलब जैसे मैं अपने बारे में सोचती हूँ that I am a good singer or I am a good teacher, then this is defining my self concept. I am a bad artist. This is a defining self concept. ठीक है. मुझे अपने बारे में ये चीजों का पता है. सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने ही कॉम्पिटेंसी मतलब मेरी अपनी काबिलियत के बारे में, और एट्रीब्यूट्स अपने different kinds of traits के बारे में पता है. जैसे कि I am an extroverted person, so I know that I love to hang out with people, I love to socialize, and my social sort of barometer is pretty high. I love to interact with people without getting tired. So then this is called self. This will be part of my self concept. ठीक है. Next we are going to do self-esteem. Self-esteem में क्या होता है? As a person, we always make some judgment about our own value or worth. So this judgment about value of our own or our own worth, it's called self-esteem. Now, the difference between self-concept and self-esteem is, first of all, self-concept में positive और negative हो सकता है, and self-esteem में high और low होता है. ठीक है. और self-concept में competencies and general attributes. Self-concept is a more generalized concept. ठीक है. उसमें अपने बारे में हमारे पास different domains में information stored है. लेकिन self-esteem is only about knowing our worth. ठीक है. That whether I am a worthy individual or not. Whether जैसे जब हम Rosenberg is basically a scale, Rosenberg self-esteem scale. It is इस book में नहीं given है, but I have done it in my research also. This is the scale that 90% of the researchers use to measure self-esteem. ठीक है. उसमें questions कैसे होते हैं? That you think you are a person of worth. जो काम दूसरे कर सकते हैं उसी जिस ease से उतनी ease से आप भी कर सकते हो. You think that. Whether you agree with these statements or not, or to what extent you agree determines your self-esteem. ऐसे 10 questions हैं उसके जो questionnaire है, Rosenberg self-esteem. You can Google it also. It's a very famous questionnaire. You can find it for free online also. So these are the kind of questions that we ask when we are assessing someone's self-esteem. ठीक है. जब हम लोग इसमें they have defined it very well कि 4 categories से छोटे बच्चों का children of the age 6 to 7 years उनका self esteem form होता है. The first one is academic competence. Academic competence मतलब how good you are at studying. आपके marks कितने आते हैं in short. Okay. Social competence is how many friends you have, whether the kind of groups you are sharing. ये होता है ना छोटे बच्चों में कि इस group का leader कौन है. A lot of times this happens. So that kind of social competence कि मेरी influence कितनी है अपने group में. ठीक है. और हमारा आता है एथलेटिक कॉम्पिटेंस, हाउ फास्ट यू कैन रन, हाउ गुड यू आर एट स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एथलेटिक कॉम्पिटेंस. ठीक है. और लास्ट है हमारी फिजिकल अपीयरेंस.
These are views about ourselves, how we look. So even if when you're 6 or 7 years old, you do have a concept about how I look to other people, right? If people are giving you a lot of nice compliments about your looks, about your hair and so, then you tend to have a high physical appearance related self-esteem. Okay? So the important thing about self-esteem is that self-esteem is such an important concept in theory and in practical also, because अगर किसी का self-esteem कम होता है ना, then that is linked to most, आप n number of psychological disorders ले लो, it will always be linked to low self-esteem. So if someone has low self-esteem, it's actually really important to work on it, वरना वो आपके daily life के behavior में और कभी-कभी disorders में के through भी manifest कर सकता है. Okay? इसमें एक बहुत important line है, which is the last line. Children whose parents help or make decisions for them even when they do not need assistance often suffer from low self-esteem. So you must have observed कि कुछ ना कुछ कोई ना कभी लोग होते हैं who are very overprotective of their children. So if the parent is making decisions for the child even when the child is capable of making a decision, for example कौन सी चॉकलेट चाहिए, अगर 2 चॉकलेट alternatives में से वो भी उनके पेरेंट्स ही डिसाइड करके उनको बताते हैं, they don't give the independence and freedom to make their own decisions and be responsible for their own decisions, then these kind of children are most likely to suffer from low self-esteem issues. वो तो होगा ही, because they have not made any decisions themselves, they have not held themselves reliable for the decisions they have made, their parents have made obviously, उन्होंने तो किया ही नहीं है, तो वो confidence नहीं आएगा, और वो confidence नहीं आएगा तो अपनी worth कम लगने लग जाती है. That's why they suffer through low self-esteem. ठीक है, अब आते हैं हम next topic self-efficacy पे. Self-efficacy is basically, very good definition is given here. It is the extent to which people believe that they themselves control their life outcomes or the outcomes are controlled by luck or fate or other situational factors. मतलब कोई ना कोई आपके होगा आसपास जो बोलेगा देखो बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए हैं, that entirely depends on your luck. But is that true? Maybe or maybe not, So बाकी कुछ लोग होते हैं who are like, no, I will prepare 100% of this chapter. So जो भी questions आएंगे, I will be able to answer them. ठीक है, जिनका कंट्रोल का लोकस जो होता है ना उनके हाथ में होता है. So highly self-efficacious people think that they are responsible for all the outcomes in their life and they will construct the surroundings around them. ठीक है, मतलब अगर मैंने 11th में psychology ले ली as a subject, then I am constructing it to do an honors in psychology. और मैंने honors कर लिया तो I am constructing that situation to do a PhD in psychology. ठीक है, आप खुद ही वो they hold themselves accountable कि I have the control to modify factors around me. जो low self-efficacy के लोग होते हैं, they are always blaming luck or they are always blaming external factors कि पेपर मुश्किल आया था, सभी के बेकार मार्क्स आए हैं, या फिर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे वही आ गए, entirely depends on luck. So they are always making excuses. ठीक है, and then we come to self-regulation. Regulation क्या होता है? Our ability to organize and monitor our own behavior. ठीक है, ऑर्गेनाइज करना कि दिन में कैसे कितना काम करना है, कितना हाउ मच सिलेबस यू हैव टू डू, व्हेन यू हैव टू डू इट. ऑर्गेनाइज करना एंड मॉनिटर करना. मॉनिटर करना मतलब नोटिसिंग वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट. बस इतना तक होता है सेल्फ रेगुलेशन. ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करना और देखना वेदर सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, सुपरविजन करना कि वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट. अगर इससे एक स्टेप हम और आगे चले जाते हैं, दैट इज कि हम लोग को बेसिकली कंट्रोल भी होना चाहिए अपने बिहेवियर पे, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर जो है वो हमारा आता है सेल्फ रेगुलेशन में, और सेल्फ कंट्रोल में आता है व्हेन वी वांट टू बी एबल टू कंट्रोल आवर बिहेवियर. तो इसमें एक एग्जांपल, अ वेरी फेमस एग्जांपल इज देयर दैट someone will tell you to touch your nose using your first finger of your right hand. So see, I am able to do it now. That means I have control over my actions. So if if someone is watching Netflix or wants to close Netflix and start studying, then they should believe that they are in 100% control of doing that. But of course self control में बहुत सारे factors होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कि whether you will be able to control your behavior or not. But as human beings, technically we are able to 100% control our behavior. ठीक है, अच्छा, इसमें नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैव बीन सजेस्टेड, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अपने खुद को इंस्ट्रक्शन देना दैट ओके गेट अप, डू दिस, क्लोज नेटफ्लिक्स नाउ, स्टार्ट स्टडीइंग द चैप्टर, ऐसा सब करना. देन सेल्फ रीइंफोर्समेंट कि अगर मैंने आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया देन आई विल हैव 1 hour ऑफ चैट सेशन विद माई बडीज. ये होता है रीइंफोर्समेंट, अपने आप को प्राइजेस और पनिशमेंट्स देना. या आज अगर मैंने ये चैप्टर खत्म नहीं किया देन आई विल नॉट टच माई फोन. ओके,
दैट इज अ पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट ओनली, बट या टेकिंग अवे समथिंग। तो एक पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट्स के थ्रू अपने आप को वो करना, ये आता है हमारा इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फटाफट कल्चर एंड सेल्फ पे, विच इज द नेक्स्ट मेन हेडिंग। सो द मेन पॉइंट इन दिस टॉपिक इज जो हमारा कल्चर होता है जिसमें वी हैव ग्रोन अप, लाइक इफ यू हैव ग्रोन अप इन इंडिया वर्सेस जापान वर्सेस यू कैन से अमेरिका, ठीक है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक सेल्फ का, ठीक है। अमेरिका जो है दैट इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, दैट मीन्स पर्सनल एट्रीब्यूट्स लाइक एम्बिशन, लाइक मटीरियलिज्म, लाइक थोड़ा सा यू कैन से सेल्फिशनेस is actually very much encouraged there. Independence is very much encouraged. तो वहां पे अगर 2 or 3 year old kid is roaming around अकेला, या फिर you must have seen that Instagram पे sometimes Australian player है एक David Warner, he'll post really cute pictures of his kids who are like 2 years old and they will be vacuuming the house. So it is very much encouraged that children become more and more independent very quickly in Western cultures, ठीक है। तो this kind of this kind of culture and how it affects yourself is called individualistic culture. और collectivistic culture, it's a classic case of Japan. Collectivistic culture में क्या होता है, your self must be defined by your relations around you, ठीक है। तो you in order to have a valuable self, you must do something valuable for the society or for your peers, ठीक है। तो this is a classic example of difference in culture and how it can affect your sense of self. तो like I was reading in the research that I am focusing on right now, उसमें we are dealing with rejection, ठीक है। तो उसमें हम क्या we are assessing that I read a very interesting paper the other day that people who are staying in the West, they take rejection more personally, ठीक है, versus people who are staying in Japan, they will take rejection in a more social kind of way. तो जितना हिट यूएस वालों को रिजेक्शन करता है उतना शायद ईस्ट वालों को ना करे, बिकॉज दे आर रिलेटिंग टू देयर सोशल सेल्फ, लेकिन अमेरिकन रिलेट टू देयर इंडिविजुअल सेल्फ, ठीक है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, सो दिस टॉपिक वाज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, हमारा मेन थ्रस्ट चैप्टर का, ठीक है। दिस इज व्हाट द होल चैप्टर इज अबाउट। अब पर्सनैलिटी का डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। It refers to unique and relatively stable qualities that are characterize an individual behavior across different situations over a period of time. Sorry, मैंने बड़ी अटक के बोलती, that's all good. हम इसको pieces and bits में करेंगे, ठीक है। तो first of all इस definition में क्या था, first factor unique and relatively stable qualities, मतलब यूनिक होनी चाहिए, ऐसी चीज जो दूसरे लोगों से अलग है, एंड रिलेटिवली स्टेबल, दैट मीन्स दे आर कैरिड विद अस ऑलमोस्ट थ्रू आउट आवर लाइफ्स, ठीक है, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एट लीस्ट, दैट आर कैरेक्टराइज ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में भी हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज वेरी हाई ऑन एक्सट्रोवर्जन, loves to talk, loves to interact with other people, loves to get social stimulation, ठीक है। देन अक्रॉस सिचुएशंस, चाहे वो क्लब में चले जाएं, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो अपनी फैमिली की गैदरिंग में हो, है ना, इन सब सिचुएशंस में देयर एक्सट्रोवर्जन शुड रियली कम आउट ऑफ देयर पर्सनालिटी एंड बी वेरी एविडेंट, ठीक है। एंड इट शुड बी, सो दिस प्रूव्स दैट इट इज स्टेबल अक्रॉस सिचुएशंस एंड इट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ डिफाइनिंग देम, ठीक है। व्हेन यू लुक एट अ पर्सन, व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन, यू कैन टेल that the person is an extrovert, ठीक है, इनको बहुत बात करना पसंद है। So once we are able to characterize someone's personality, we can predict how they will behave or how the person will, act in a certain kind of situation. So why the fuss about personality? It's because if we know ourselves, our own personality, and if we know the personality of other people, then it's very very good in predicting their behavior, ठीक है। And of course हमने जो पहले भी पढ़ा है इन साइकोलॉजी, वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ साइकोलॉजी इज प्रिडिक्शन, कि आगे क्या होगा फोरकास्ट करना, ठीक है। तो पर्सनालिटी के थोड़े थोड़े फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, मतलब जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा, इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज कि उसकी पर्सनालिटी बड़ी हैवी स्ट्रॉन्ग सी है, दैट मीन्स दैट द पर्सन इज प्रोबब्ली टॉल एंड वेरी मस्कुलर, सो पर्सनालिटी इन दैट। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड होंगे, साइकोलॉजिकल भी, दैट बड़ी बोल्ड है, या फिर उनके बात करने से पता चलता है दैट दे आर वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। ये सब हमारे पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इट्स एक्सप्रेशन, सेकंड जो हमारा फीचर आता है, इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल, ठीक है। एक्सप्रेशन इज प्रिटी यूनिक,
आप देख लो, दो आपके आसपास एक्सट्रोवर्ट्स भी अगर हुए, आपके दो फ्रेंड्स हैं, both of them are extroverts, ठीक है. One might like to seek adventures in the sense कि they want to go on a roller coaster. One might seek adventure and social stimulation in the sense that they want to go to a club. तो no two extroverts are exactly the same, ठीक है. Same personality trait होने के बाद भी uniqueness is maintained. Third feature is that they do not change with time. Once an extrovert, always an extrovert, ठीक है, unless very very compelling circumstances or very dire situations, ठीक है. Then fourth feature is it is dynamic in the sense that some of the features may change due to internal and external situational demands, adaptive to situations. अब exactly I was just going to say कि अगर कोई बहुत extrovert भी है, but if they are going to a funeral, the socially acceptable way to behave in a funeral is to be quiet, है ना. तो change हो सकते हैं due to internal external forces, but ऐसा नहीं है कि एक फ्यूनरल की वजह से चेंज हुआ ना. बट एज सुन एज दैट पर्सन गेट्स इनटू हिज लोकल हैबिटेट, जो जब जैसे ही वो अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाएंगे, देन दैट पर्सन विल ऑब्वियसली स्टार्ट बिहेविंग इन देयर कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी वाले वेज. ओके, अब हम आते हैं अप्रोचेस टू स्टडी, मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो डू पे अटेंशन एंड इट्स ऑल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट हम जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स इन जस्ट डेफिनेशंस कर लेते हैं उनकी, और उसके बाद हम डिटेल में विल टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स. फर्स्ट लेट मी डिस्क्राइब टू यू द थ्री काइंड्स विच आर टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच एंड इंटरसेक्शनल अप्रोच, ठीक है. टाइप अप्रोच में क्या होता है कि टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, ठीक है. एक बेसिकली यू ड्रॉ अ बॉक्स कि इस टाइप के लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये एक आप समझ लो कि यू आर कुकिंग अ डिश, ठीक है. तो आप उस डिश में ये मसाला डालना है, वो चिकन डालना है, ये करना है, वो करना है, और उसका आपने एक सब्जी बना दी. दैट इज काइंड ऑफ लाइक टाइप अप्रोच कि इस चीज में ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इस टाइप में ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ठीक है. अभी आपको मैं बताऊंगी कि टाइप ए टाइप बी जो होते हैं वो उन्होंने ऐसी फिक्स्ड बाउंड्रीज सेट कर रखी है, जिसे कहते हैं ना पुटिंग पीपल इन अ बॉक्स. दिस इज लिटरली दैट अप्रोच, ठीक है. ट्रेट अप्रोच कौन सी होती है? फोकसेस ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलोंग विद इंडिविजुअल्स दैट टेंड टू डिफर इनकंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज, ठीक है. तो इसमें क्या है, हम डिफरेंट एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया था वो डिस्क्राइब करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज स्टडीड ऑन अ स्पेक्ट्रम, ठीक है. कि लो ऑन एक्सट्रोवर्जन, हाई ऑन एक्सट्रोवर्जन, एक लो और हाई का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है. मीडियम ऑन एक्सट्रोवर्जन. इट्स नॉट कि या तो एक्सट्रोवर्ट है कोई बंदा या इंट्रोवर्ट है ना, ऐसा नहीं है. लो ऑन एक्सट्रोवर्जन बोलेंगे, हाई ऑन एक्सट्रोवर्जन, सिमिलरली लो ऑन इंट्रोवर्जन या मीडियम भी बोल सकते हैं. तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ कैसे बताऊं एंकर होता है कि हम उसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं ऑन अ स्पेक्ट्रम. इट इज नॉट फिक्स्ड कि एक्सट्रोवर्ट्स हमेशा के हमेशा इसी वाली कैटेगरी में आएंगे, ऐसा नहीं है. बट टाइप अप्रोच में ऐसा है, ठीक है. देन इंटरैक्शनल अप्रोच, सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग आवर बिहेवियर. तो इंटरैक्शनल अप्रोच ये होती है कि हमारी इंटरनल फोर्सेस ऑफ पर्सनालिटी वर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ सिचुएशन आपस में इंटरैक्ट करके विल डिटर्मिन आवर बिहेवियर, ठीक है. एज आई टोल्ड यू, वेरी सिंपल एग्जांपल इज समवन हु इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, बट इफ ही इज गोइंग टू अ फ्यूनरल देन ही विल नॉट बिहेव इन एन एक्सट्रोवर्टेड मैनर, ही विल बिहेव इन एन इंट्रोवर्टेड मैनर ना. तो इंटरनल हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स और बाहर के जब इंटरैक्ट करेंगे उन दोनों पे डिपेंड करेगा कि बिहेवियर क्या है, ठीक है. तो आ जाओ अब फटाफट से हम पढ़ते हैं टाइप अप्रोचेस को इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप अप्रोच में इंपॉर्टेंट नेम आता है दैट इज दैट ऑफ हिपोक्रेट्स. You must have heard it before. He's a Greek philosopher. He proposed the typology of personality based on fluid or humor. मतलब हमारे अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिन पे डिपेंडेंट हमारी पर्सनालिटी आएगी, ठीक है. So he classified people into 4 types: sanguine, phlegmatic, melancholic and choleric, characterized by similar behavioral features. अच्छा, इनकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी में नहीं दी है, so I'll not get into that, but again the rule applies. आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना, I will provide them. नेक्स्ट आता है हमारा चरक संहिता वाला ट्रीटीज ऑन आयुर्वेदा, जो हमारे इंडियन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी इज डिस्क्राइब बाय ऑल्सो ह्यूमरल एलिमेंट्स, मतलब फ्लूइड से डिस्क्राइब करी गई है. वक्त, पित्त, कफ, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड त्रिदोष, 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स. Each refers to a temperament called प्रकृति. ऐसा आपने बहुत सुना होगा बड़े लोगों को बोलते हुए कि वो इस प्रकृति का है, इस नेचर का है ना. So this is our Ayurvedic approach. The third one is that of typology. So based on त्रिगुणास, सत्व गुण, रजस गुण एंड तमस गुण.
I have studied these in earlier classes. सत्वगुण क्या होता है? Cleanliness, truthfulness, dutifulness, detachment. ठीक है? The very idealistic way of functioning. very much inspired from the Gita. तो राजस गुण क्या होता है? Intensive activity, desire for sense of gratification, dissatisfaction, envy, materialism. Very Western concepts. तमस गुण क्या होता है? एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, हेल्पलेसनेस. ये 3 टाइप के गुण इन्होंने डिस्क्राइब करे हैं. एवरी इंडिविजुअल कैन बी मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ गुड्स. ठीक है. 4th आता है हमारा शेल्डन वाली, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक. तो एंडोमॉर्फिक वो लोग होते हैं जो थोड़े से फैट, राउंड एंड सॉफ्ट. दे आर रिलैक्स्ड एंड सोशिएबल अकॉर्डिंग टू शेल्डन ऑफ कोर्स. मीजोमॉर्फिक होते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चरल, रेक्टेंगुलर उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, एनर्जेटिक एंड करेजियस, दैट्स देयर पर्सनालिटी टाइप. एंड एक्टोमॉर्फिक होती हैं ब्रेनी, आर्टिस्टिक, इंट्रोवर्टेड एंड वेरी लिमिटेड यूज इस चीज का है इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर. उन्होंने ना बस डिस्क्राइब कर दिया है कि जो लोग थोड़े फैटर साइड पे हैं वो दे आर इजी गोइंग, जो थोड़े थिनर साइड पे हैं दे आर ब्रेनी, आर्टिस्टिक. बट आई फील लाइक दिस इज अ वेरी अनजस्ट काइंड ऑफ very a weird way of describing personality, because just because of someone's body weight you cannot predict their intellectual capability. No study ever has done that except for Sheldon's. So this is just a way of describing it, and of course it's kind of inappropriate also though, but you need to learn it for exam purposes, but it does not apply on the real world or in daily life for sure. Okay, next आते हैं हमारे यम कालियम, introverts, extroverts. This is a good dimension जो typology में भी, but it is a good dimension that is also used in trait psychology. Introverts वो होते हैं जो prefer to be alone, tend to avoid others, withdraw themselves in the face of emotional conflicts and are very shy. ठीक है. Extroverts होते हैं sociable, going, outgoing, drawn to occupations that allow dealing directly with people. So if you are want to become a psychologist, it's actually pretty useful if you are an extrovert. Because this involves talking to so many people and interaction with so many people that it will be very hard for introverts to sort of adjust to that. They won't be able to enjoy themselves. They might become just as good psychologists, but it's very difficult for them to enjoy. ठीक है. Finally हम टाइप अप्रोच में लास्ट पढ़ते हैं, that is फ्राइडमैन एंड रोजनमैन. इन्होंने टाइप पर्सनालिटी ABCD डिफाइन करी है. ठीक है. तो यही मैं आपको बता रही थी, पुटिंग पीपल इन बॉक्सेस. जो टाइप A है वो टाइप B नहीं हो सकता, जो टाइप B है वो C नहीं हो सकता. इस टाइप की पर्सनालिटी है. और अगर कोई टाइप A है उसमें टाइप A के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ठीक है. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ टाइप अप्रोच ओनली ना, कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट पुटिंग पीपल इनटू बॉक्सेस. इसीलिए अप्रोच वाज टेकन ओवर बाय ट्रेट अप्रोच. तो टाइप A they have described as highly motivated, impatient, always in a hurry, feel like they're always burdened with work. They take more work than they can handle and then procrastinate. Then they always are in a hurry, always this. B वाले होते हैं the absence of type A traits. That's all that's given in NCERT. ठीक है. Type C बाद में मॉडल्स ने ऐड किया, cooperative, assertive, patient, suppress negative emotion. Type D just the only information given here is prone to depression. ठीक है. So these are not very साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट, बट आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेट अप्रोच पे. दिस इज द मेजर अप्रोच दैट इज बीइंग यूज्ड टू इवैल्यूएट पर्सनालिटी इवन नाउ. ठीक है. सबसे पहले हम करते हैं एल्बर्ट्स ट्रेट थ्योरी. गॉर्डन एल्बर्ट नाम है. ही हैज डिस्क्राइब्ड 3 काइंड्स ऑफ ट्रेट्स. ठीक है. डिविजन्स करी हैं. Cardinal traits that are very highly generalized disposition indicates the goal of a person's life. For example, Hitler's Nazism, वो उसका एक main cardinal trait है. ठीक है. या I think I have read Gandhi's non-violence also. It's that kind of cardinal trait. ठीक है. Central traits क्या होते हैं? Less pervasive, मतलब less pervasive मतलब आपकी लाइफ में कम इंटरफेयर करने वाले. तो but still quite generalized. For example, sincere, जिसकी कोई qualities होती है ना कि बच्चा बहुत सिंसियर है, दैट इज अ सेंट्रल ट्रेट. सेकेंडरी ट्रेट होते हैं या लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस, जैसे कि किसी को चाइनीज फूड पसंद है, किसी को मुगलाई पसंद है, दैट इज वेरी सेकेंडरी ट्रेट. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू कैटल. कैटल का पर्सनालिटी फीचर्स इन्होंने भी अच्छी खासी डिविजन करी है. प्राइमरी ट्रेट्स एंड जो हमारे नेक्स्ट आते हैं सरफेस ट्रेट्स. ठीक है. प्राइमरी होते हैं स्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अपोजिंग टेंडेंसीज. ठीक है. Again, you can compare these with cardinal and central traits. And surface traits होते हैं, they result out of interaction of source traits. इन्हीं के interaction से जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहे हैं, that is a surface trait. ठीक है.
आइजेंक थ्योरी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट रिड्यूसिंग पर्सनैलिटी टू 2 ब्रॉड डायमेंशन। एक थर्ड भी ऐड हो गया है अब इसमें। सो एक डायमेंशन में आई टोल्ड यू ना कि स्पेक्ट्रम में रिड्यूस किया है, लो हाई टाइप का। तो न्यूरोटिसिज्म एंड वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कोई कितना एंक्शियस एंड जंपी टाइप ऑफ पर्सन और इमोशनली स्टेबल, काम एंड इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते जो लोग, वो इमोशनली स्टेबल। ये अपोजिंग फोर्सेस है, ठीक है। एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द फाइनल वन दैट हैज बीन अभी एडेड इज साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। साइकोटिसिज्म मतलब हॉस्टाइल, एगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल, तोड़फोड़ करने वाले लोग जो बहुत ज्यादा अपने में रहते हैं, अग्रेसिव से होते हैं थोड़े से, है ना। और सोशियबिलिटी होती है who are very sociable, very amicable, lovable, nice people who will just not that psychoticism अगर आपका है तो you're not nice, but sociable people will just fit into the surroundings very well, ठीक है। Now let's move on to the next main heading of this chapter, which is that of psychodynamic approach, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था एंड दिस हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्सनालिटी, दिस हैज बीन यूज्ड एज थेरेपी। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी आपके डिफाइन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद साइकोडायनेमिक अप्रोच फटाफट से। इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिए हैं, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, विच इज जो हम अवेयर है। सो कॉन्शियस क्या होती है? थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ विच वी आर अवेयर, जो हम लोग जानते हैं। मैं एक वीडियो बना रही हूँ, आई नो दैट आई एम स्टडीइंग दिस, आई नो आई एम डूइंग PhD, ये सब जो चीजें हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस होते हैं मेंटल एक्टिविटी विच पीपल मे बिकम अवेयर इफ दे ओनली अटेंड टू इट क्लोजली। यही अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन से रिलेटेड पॉइंट है। आपके अराउंड कोई चीजें हो रही है बट आप उस पर ध्यान दोगे तभी आपको पता चल पाएगा। और अनकॉन्शियस होती है जो हमें पता ही नहीं है, अनअवेयर, ठीक है। क्यों दे आर नॉट एक्सप्रेस, दे कैनॉट बी एक्सप्रेस बिकॉज दे आर इनअप्रोप्रिएट, दे आर आइदर रिलेटेड टू सेक्सुअल फीलिंग्स और दे आर रिलेटेड टू अग्रेशन। ये इसने हाइपोथेसाइज किया, ठीक है। तो द मेथड ही यूज्ड वाज फ्री एसोसिएशन, मतलब जो आपके मन में आप बोलते रहो एंड आई विल ट्राई टू साइको एनालाइज, टिपिकल साइकोलॉजिस्ट का जो एक स्टीरियोटाइप है। और ड्रीम एनालिसिस, नॉट मच इज गिवन बट ही एनालाइज द ड्रीम्स ऑफ पीपल टू टैप इनटू देयर अनकॉन्शियस। ही थॉट दैट वाज अ गेटवे, ठीक है। तो इन्होंने 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी दी है, विच इज आवर नेक्स्ट सब हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे जो काम करता है, मतलब एक ऐसा छोटा बच्चा हमारे अंदर जिसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर चाहिए, ठीक है। मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी ही चाहिए, वो वाला जो वॉइस है हमारे अंदर की, दैट इज इड। एंड फ्रॉइड हैज सेड कि हम इड की बातें नहीं जान सकते, इट्स वेरी डीप इनटू द अनकॉन्शियस, ठीक है। ईगो क्या होता है? समथिंग दैट इज डीलिंग, हमारा जो इंटरनल जो सेल्फ है दैट इज डीलिंग विद रियलिटी प्रिंसिपल, मतलब उसको रियलिटी मेंटेन करनी है। जैसे कि हमारे इड को सिर्फ प्लेजर से मतलब है, हमारे ईगो को रियलिटी से मतलब है। कि माना दैट इसमें एक एग्जांपल गिवन है कि चाइल्ड वांट्स एन आइसक्रीम बट ही कैन नॉट स्नैच इट फ्रॉम द अदर चाइल्ड, है ना। ही हैज टू आस्क हिज मदर पोलाइटली टू बाय हिम or her an ice cream and then only he will be able to get it in a socially acceptable way. तो उसका this is his ego talking, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है? मॉरल ब्रांच जो हमारी होती है, व्हाट शुड्स एंड मस्ट्स जो होते हैं ना, ये होता है हमारा सुपर ईगो में। सो क्या एथिकल है, क्या एथिकल नहीं है, whether the ice cream that's made of milk should be consumed by humans or not, should we have cow's milk or not, ये जो ethical questions about ice cream है, that is super ego, ठीक है। तो इसी की extension में फ्रॉइड हैज गिवन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म्स ये चीज होती है that are used to reduce anxiety by distorting reality, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, सो दैट आवर सेल्फ एस्टीम एंड आवर इंटरनल एक्सक्यूजेस आप इनको बोल सकते हो, कि जिससे कि वो हमारी सेल्फ एस्टीम हार्म ना हो। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। डिप्रेशन इज बेसिकली जो भी हमारे को जिस चीज से एंग्जाइटी हो रही है उसको हम दबा देते हैं, विल नॉट थिंक अबाउट इट, विल जस्ट डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? अपनी फीलिंग्स दूसरों पे प्रोजेक्ट करना, मतलब इफ आई एम नॉट अ लॉयल पर्सन देन आई एम नॉट लाइकली टू थिंक दैट माई पार्टनर इज ऑल्सो लॉयल टू मी। अपनी फीलिंग्स में उन पर प्रोजेक्ट करती हूँ, ठीक है। डिनायल क्या होता है? कि रिफ्यूज कर दिया आपने। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो बोला ही नहीं, आपने मैंने कब बोला, मैंने तो बोला ही नहीं, देन दे आर डिनाइंग कि टू एक्सेप्ट रियलिटी, ठीक है।
रिएक्शन फॉर्मेशन होता है अपने से उल्टा एक्ट करना, जो अपने आपके ट्रू फीलिंग्स है उनसे ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं और सेक्सुअल ऑफेंडर्स, दे विल एक्ट इन वेरी रिलीजियस एंड वेरी कि भाई मोह माया कुछ नहीं है, ये नहीं है ऐसा ड्रामा जो लोग करते हैं, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम रीजनेबल। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है कि समवन इज ब्लेमिंग द पेन फॉर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन एन एग्जाम, अनरीजनेबल फीलिंग बट यू आर ट्राइंग टू मेक इट रीजनेबल। ठीक है, तो फटाफट से हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ ओरल स्टेज, जो कि इन्फेंसी के ड्यूरिंग होती है। इसमें एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड आवर माउथ, तो उन्होंने बोला दिस इज द ओरल स्टेज, प्लेजर सेंटर इज दैट ऑफ आवर माउथ। देन देयर इज द एनल स्टेज, 2 to 3 years में, उसमें हमारा प्लेजर सेंटर होता है हमारा एनस, एंड वी सीक अ लॉट ऑफ प्लेजर इन पासिंग स्टूल, तो पॉटी करने में। देन देयर इज द फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज होता है 4 to 5 years of age। इसमें क्या होता है, वी स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स एंड वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सेक्सुअलिटी एंड द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक फैलिक स्टेज में ही हैज डिस्क्राइब्ड, यस, these are the 2 important complexes that he has described in phallic stage. These sound a bit weird, but that's what his theory is, so we'll do them as it is. Oedipus complex क्या होता है, named after a king, Greek king who unknowingly killed his father, is that males are really likely to feel jealous of their father, and basically क्या होता है कि the male child experiences Oedipus complex, which involves love for the mother and hostility towards the father. They don't like their father, and of course they're also scared of them simultaneously. ठीक है, तो as this developmental stage progresses, क्या होता है कि the child will accept the father's relationship with their mother and will make peace with it. And if a child has done this, then he has successfully passed Oedipus complex according to Freud. सिमिलरली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में वही होता है कि दिस वाज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक कैरेक्टर, जो सिमिलर टू एडिपस, जिसमें फीमेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर फादर एंड दे थिंक दैट माय मदर इज अ हर्डल काइंड ऑफ टू एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद माय फादर बिकॉज माय मदर इज देयर। तो उसमें क्या होता है कि ये रिजॉल्व कैसे होता है, दे विल लुक एट देयर मदर एंड दे विल स्टार्ट मॉडलिंग देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर मदर। ठीक है, तो उनके साथ में उनके बिहेवियर को कॉपी करने लग जाते हैं, उनकी जैसे बनने लग जाते हैं, एंड दिस रिजॉल्व्स द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। देन वी मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज लेटेंसी। इसमें आप यू ग्रो फिजिकली बट सेक्सुअल अर्जेस आर रिलेटिवली इनएक्टिव। एंड द फाइनल स्टेज विच इज द जेनिटल स्टेज, इसमें यू अटेन प्यूबर्टी एंड इसमें आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, और फियर एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ अर्लियर स्टेजेस अगर आपकी हैं तो यहाँ पर एक्सप्रेस हो जाएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने डिस्क्राइब करी है, दैट इज दैट ऑफ रिग्रेशन, दैट इज मेंटल ट्रैवल बैक टू एन अर्लियर प्लेस। इफ आपकी कोई भी स्टेज अच्छे से आपकी पास नहीं हुई है, एडिपस कॉम्प्लेक्स फंस गया है या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फंस गया, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, देन you will basically make a mental journey back to that stage and when you are having problems in your adult life. ठीक है, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस वो हैं जिन लोगों ने फ्रॉइड के बाद सॉर्ट ऑफ डिफरेंट चीजें प्रपोज करी। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद द पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। सो लेट्स मूव ऑन टू पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस जो फ्रॉइड के बाद आएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज दैट ऑफ कार्ल यंग, एम्स एंड एस्पिरेशंस। तो एवरीबडी आफ्टर फ्रॉइड, मोस्ट ऑफ देम थॉट दैट इट्स नॉट दैट हमारी एंटायर साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन सेक्स और अग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा भी मोटिवेशन होती है लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ देम was कार्ल यंग who said that we have aims and aspirations in life. ठीक है, हम लोगों को ह्यूमन बीइंग्स आर गाइडेड बाय एम्स एंड एस्पिरेशंस। Personality consists of competing forces and structures within the individuals rather than between individuals and the demand of society. ऐसा नहीं है that we are ships that are being driven here and there by the waves. हम लोग का अपना भी कोई aim होता है, aspiration होती है. That was put forward by Carl Jung. ठीक है, इन्होंने collective unconscious consisting of archetypes or primordial images not individually acquired but genetically inherited. इन्होंने ये वाला concept propose किया. Next we come to Karen Honey, who was a proponent of optimism.
तो इन्होंने क्या बोला कि शी वॉज रियली क्रिटिकल ऑफ फ्रॉइड्स व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स एज सेक्सुअल बींग्स, और दूसरी रीजन को ये भी बहुत बुरा लगा कि फ्रॉइड ने, इट इज अ वेरी मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव, जो भी केस स्टडीज फ्रॉइड ने करी मेजोरिटी ऑफ देम वर ऑन मेल्स। तो वेरी गुड पॉइंट शी रेज की जो साइकोलॉजी होती है दैट इज नॉट जस्ट अबाउट मेल्स एंड नाइदर इज मेल अ प्रोटोटाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को स्टडी करने के लिए सिर्फ मेल्स को स्टडी करना जरूरी है, यू शुड स्टडी फीमेल्स ऑल्सो। ठीक है, तो she gave the concept of the fact that psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationship during childhood। ठीक है, कि आपके आसपास के लोगों से आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने की वजह से you can experience conflict। And she talked about basic anxiety, which is basically when a parent's behavior toward a child is indifferent, discouraging and erratic. This could make the child feel very insecure, and this would be called basic anxiety। डिस्क्राइब उन्होंने भी वही किया कि हाउ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैन अफेक्ट योर एडल्ट साइकोपैथोलॉजी, हाउ अडल्ट लाइफ, अडल्ट साइकोलॉजी। लेकिन शी सेड कि अगर आपका बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपीरियंस स्ट्रेन रहा है, रिलेशनशिप स्ट्रेन रहा है, दैट कैन कॉज बेसिक एंजाइटी विच विल बी मैनिफेस्टेड इन लेटर स्टेजेस ऑफ अडल्ट लाइफ ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एल्फ्रेड एडलर। इन्होंने बताया कि ही फोकस्ड लॉट ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, ही सेड बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल। ऐसा नहीं है कि हम अग्रेशन और सेक्स को दबाने के लिए ही अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वी हैव एम्स, एस्पिरेशंस, जो कार्लियन ने पोस्ट किया उसी के एक्सटेंशन में ही सेड दैट हम लोगों का एक पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। ठीक है, कोई मतलब है हमारा कुछ भी काम करने का। So every individual suffers from the feeling of inadequacy and guilt and inferiority complex which arises from childhood। तो ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी, inferiority complex, कि किसी को फीलिंग्स having feelings of inferiority about yourself। ठीक है, कि मैं दूसरे लोगों से कम हूँ। This must be resolved if you don't want to encounter any kind of psychological disorders in adulthood। Then the second last is Eric Fromm। इन्होंने क्या किया, सोशल ओरिएंटेशन। इन्होंने बताया कि सोशल बींग्स हु एक जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, दोज आर सोशल बींग्स, दे मस्ट बी व्यूड इन reference to their social environment। We have discussed this before, and he also described character traits जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन टाइप वाले। एरिक एरिक्सन, इन्होंने बोला आइडेंटिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने शायद ह्यूमन डेवलपमेंट में भी करा है, चैप्टर 4 क्लास 11 में। तो एरिक एरिक्सन ने वो वाली बात बोली, रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी क्राइसिस एट एडोलेसेंट स्टेज 12 to 19 years old, कि मैं हूँ कौन, why have I come into this world, what should I do to make an identity of my own, all these kind of questions arise। ठीक है, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं फ्रॉइड की थ्योरी के। एज आई टोल्ड यू, इन लोगों ने भी सबने क्रिटिसिज्म में ही अपनी अपनी थ्योरीज लिखी कि दे आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज विच इज नॉट दैट गुड ऑफ अ साइंटिफिक टेक्निक। सैंपल साइज भी कम था फ्रॉइड का। ठीक है, दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स एज सैंपल्स, एज आई सेड। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, और उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते ना। फॉल्सिफाइबिलिटी एक टर्म होती है, वो है ही नहीं फ्रॉइड में। आप कैसे टेस्ट करोगे अनकॉन्शियस डिजायर्स है या नहीं, या एनल स्टेज में कोई अटक गया था, ओरल स्टेज में अटक गया था, ये कैसे टेस्ट करोगे साइंटिफिकली? यू कैन नॉट डू इट। तो एंड खाली मेल्स को उन्होंने प्रोटोटाइप समझा ह्यूमंस का, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बिहेवियरिस्ट अप्रोच को छोटे से मैं आपको उसमें डिफाइन कर देती हूँ। बिहेवियरिज्म हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज थ्रू द कनेक्शंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस ड्राइव आवर बिहेवियर, दैट इज व्हाट बिहेवियरिस्ट अप्रोच सजेस्ट्स। ठीक है, तो the concept here are not properly, जब हम आते हैं personality is a response of individual as sample for advancing generalization। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ हो रही है वो एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट से, नेगेटिव पॉजिटिव जो हमने 11th में पढ़ा था उसी से हो रही है। दैट वाज ऑल अबाउट बिहेवियरिस्ट अप्रोच। रिस्पॉन्स इनका फंक्शनल यूनिट था, सो डू रिमेंबर दैट, स्ट्रक्चरल यूनिट, सॉरी। देन हमारी आती है कल्चरल अप्रोच। ये सारे ना अप्रोचेस ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दीज आर इंपॉर्टेंट बट यू शुड जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इट, आपको निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। कल्चरल अप्रोच हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे सराउंडिंग्स, रिलीजन, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, दैट रियली अफेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी। कुछ लोग हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी आर नॉट वेरी मच एम्फसाइज्ड। हमारे यहाँ सेल्फिशनेस बोल देते हैं उस चीज को, राइट? और वहां अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में सेम पर्सनालिटी ट्रेट्स लेंगे तो उनको बहुत अच्छा मानेंगे। दैट इज द कल्चरल डिफरेंस।
Then we come to Humanistic Approaches by Carl Rogers and Abraham Maslow. Maslow's Hierarchy of Needs हमने पढ़ा था क्लास 11 में, और कार्ल रॉजर्स ने भी यही बोला कि assumptions about human behavior उनके क्या थे कि goal directed and worthwhile, कोई मतलब है हमारे behavior का, and people are innately good and they will make choices that are adaptive. तो he assumed कि humans will behave as good people and they will behave in a way that जो चीज अच्छी है उनके लिए वो करेंगे और जो चीज अच्छी नहीं है वो नहीं करेंगे. ठीक है. He said that personality development is a continuous process. आप धीरे धीरे अपनी नीड्स पूरी करते जाओ और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ प्रोसीड करो. दैट इज द रियल एम ऑफ ह्यूमंस. ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज दैट ऑफ मेन टॉपिक, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है. ये दो टाइप्स के असेसमेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स वर्सेस प्रोजेक्टिव मेजर्स. फटाफट से हम इसमें डिफरेंस कर लेते हैं. तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स कौन से होते हैं, जिनमें आप यूजुअली पेन एंड पेपर होगा एंड यू विल टिक और यू विल फिल अप कि कौन सा आप पे एप्लीकेबल है और कितना एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन दे हैव डिफाइंड हियर इज MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. इसमें बहुत सारे 567 स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू से ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, MCQ मल्टीपल तो है नहीं, दो चॉइस ट्रू फॉल्स वाले हैं. तो इसमें बेसिकली इट वॉज डेवलप्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल कि किसको डिप्रेशन हिस्टेरिया तो नहीं है, और नाउ इट हैज कम टू बी एक्सेप्टेड एज अ पर्सनैलिटी टूल. ठीक है. तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर हो गया ये वाला. इट इज स्ट्रक्चर्ड. इसमें आपका जो है वेरी ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू आंसर येस नो और ऑन अ लाइकर्ट स्केल, एंड इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी टू रिपोर्ट आवर ओन फीलिंग्स. ठीक है. तो हमारी अपनी की जो फीलिंग्स है इंट्रोस्पेक्शन में, अगर आपसे पूछा आप कितने हार्डवर्किंग हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, तो यू शुड बी सेल्फ अवेयर इनफ. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि एक्चुअली यू आर 8 on 10 हार्ड वर्किंग बट आप 6 on 10 लिख रहे हो, या एक्चुअली यू आर 8 on 10 पर आप 10 on 10 लिख रहे हो. तो उसके लिए एक सेल्फ अवेयरनेस आपकी चाहिए होती है. ठीक है. एंड इट इज ओनली रिपोर्टिंग वॉट यू आर कॉन्शियसली रिपोर्टिंग. अनकॉन्शियस का इसमें कोई रोल नहीं है. ठीक है. सिमिलरली आइजिंग्स पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, वो जो हमने पढ़े थे जो अपोजिंग फोर्सेज वाला, उसमें सेम क्वेश्चन है इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल अनस्टेबल, जो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी था. तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें आप ये सब चीजें भी अपने बारे में यू कैन, और अबाउट अदर पीपल यू कैन नो. 16 PF पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है दैट इज वेरी वेरी फेमस. जो है हमारी एक और बिग 5 पर्सनैलिटी है, वो भी बहुत फेमस है. क्वेश्चन है ये दोनों. तो इसमें इट वॉज डेवलप्ड बाय केटल. डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स हैं इसमें. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड ऑन हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स एज वेल एज अडल्ट्स. इनफैक्ट आपको पता है अगर आप गूगल पे टाइप करोगे 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट, यू कैन गो एंड टेक द टेस्ट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स यू हैव. ठीक है. ऑल्दो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स काफी अच्छे हैं बट उनमें लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट इज दैट ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी. एज आई आस्क्ड कि व्हेन आई आस्क कि हाउ हार्ड वर्किंग आर यू, it is already a loaded question. You want to respond by saying 10 on 10 ना, you don't want the person to feel कि अरे ये तो बिल्कुल बेकार बंदा है. So that is ratings जो है वो इधर उधर डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. ठीक है. एक्विसेंसेस, आप उन आइटम से अग्री करते हो जिसको आप नो बोलते. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. कभी कभी हमको कॉल्स आते हैं कि चैरिटी के लिए कॉल है, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, विल यू बी विलिंग टू वॉलंटियर. इट इज सच अ लोडेड क्वेश्चन कि आप नो नहीं बोल सकते, आपको हाँ ही बोलना होगा. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्विसेंस. ठीक है. नाउ वी कम टू वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स विच इज दैट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. ठीक है. इसमें आता है हमारा रॉर्शॉक इंकप्लॉट टेस्ट. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो दे आर बेस्ड ऑन, कैन यू गेस? यस, दे आर बेस्ड ऑन फ्रॉइड्स थ्योरी, बिकॉज दे थिंक कि ये सेल्फ रिपोर्ट तो वो है जो आप खुद बता रहे हो, प्रोजेक्टिव टेक्निक से हमें वो जानना है जो आप खुद नहीं बता रहे हो. ठीक है. टैपिंग इनटू अनकॉन्शियस, दैट्स व्हाट दे एम टू. तो फर्स्ट हम आते हैं रॉर्शॉक इंकप्लॉट टेस्ट पे. इसमें एक इंकप्लॉट गिवन होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, पेज नंबर 44 पे. यू कैन सी some people say that it's a bat, some people say that it's something else. I think one of the students I was teaching was saying कि मैम ये तो केकड़ा है, it is a crab. So then when I looked at this picture I said like it looks like a crab. So ये हमारा रॉर्शॉक इंकप्लॉट टेस्ट है जहाँ पे आपको वेग ब्लॉक्स दिए जाते हैं that are symmetrical and you have to tell कि आपको उस ब्लॉक में क्या दिख रहा है. So it is assumed कि you will sort of project your unconscious feelings onto the block. ठीक है. इसमें दो स्टेजेस हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर जिसमें सब्जेक्ट्स आर शोन द कार्ड्स एंड देन इंक्वायरी कि
परफॉर्मेंस प्रॉपर में आपसे पूछेंगे क्या दिखा, बैड, अच्छा ठीक है। इंक्वायरी में आपको बैड क्यों दिखा, व्हाट मेड यू फील लाइक इट वाज बैड, ऑल दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सिमिलरली एक नेक्स्ट टेस्ट आता है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, वेरी गुड पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 45। अब ये एक लेडी है जो दूसरी लेडी को ऐसे देख रही है, सो यू हैव टू डिस्क्राइब कि इनका रिलेशनशिप क्या है, स्टोरी क्या है पिक्चर को यूज करके आप क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो। सो इफ समवन इज प्रोबेबली रियली अपसेट विद देयर मदर इन लॉ, मे बी दे विल से कि यू नो दिस पर्सन इज रियली हैप्पी कि ये यंग वन इज सैड, तो शी इज बीइंग हैप्पी अबाउट इट, तो अपनी फीलिंग्स लोग इस पे प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा अज्यूम करते हैं। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी इज वेरी गुड फॉर एंगर मैनेजमेंट। इसमें आपको एंग्री सिचुएशंस दी जाती हैं जिसमें आप बेसिकली दे प्रोवोक योर एंगर एंड देन दे विल आस्क कि आप कैसे बिहेव करोगे, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, व्हाट शुड यू नो बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड ऑफ कोर्स इफ समवन बिहेव्स इन अ वेरी अग्रेसिव मैनर देन दैट कैन बी टैकल्ड। ये एक थेरेपी की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आपने पहले भी किया होगा, आई एम डैश, माई फादर इज डैश, सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट यू टू से व्हाट यू आर नॉट सेइंग आउट एक्सप्लिसिटली, ठीक है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट, इसमें आपको एक पर्सन ड्रॉ करने को दिया जाता है, अनलेस यू हैव एक्सेप्शनली बैड आर्ट स्किल्स लाइक माई सेल्फ, यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ गुड सेम पर्सन। तो अगर आप फेशियल फीचर सबमिट कर रहे हो तो दे आर सेइंग कि यू आर कॉन्फ्लिक्ट रिडन एंड सो ऑन। दे हैव डिस्क्राइब्ड कि अगर आप नेक को बहुत ज्यादा एम्फोसिस दे रहे हो देन यू लैक कंट्रोल ओवर योर इम्पल्सेस। हाउ दिस इज हैपनिंग आई डोंट नो, एंड अ लार्ज हेड सजेस्ट्स ब्रेन डिजीज, ओके, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। चलो कोई बात नहीं। So next topic we come to is that of behavior and analysis। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। So इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू, जो हमने पहले से बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्लास 11 में भी। अनस्ट्रक्चर्ड वर्सेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में देयर इज नॉट अ सेट डिफाइंड क्वेश्चंस कि आपको ये पूछने हैं। स्ट्रक्चर्ड में ऐसा होता है कि यू नो डिफाइंड है, आपको ये वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको तब भी बताया था कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क होता है, कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में आप चीजें नोट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, उनकी डायरी नहीं बनाते। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में ये सब चीजें करनी होती हैं। सेकेंडली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में आपको ये भी सोचना होता है कि मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, ऐसी नहीं कि अगर यू नो मम्मी किचन से बाहर निकल के आ गई तो उनको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ फ्रीक्वेंट एंड वाइड स्प्रेड यूज, इन दोनों का इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन का बहुत सारा लिमिटेशंस भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है इनको दोनों को करने के लिए, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। Maturity of the psychologist is a problem. If psychologist is sexist or racist, then obviously it will affect. ठीक है। Mere presence of the observer may contaminate the results. Again, कोई चीज कोई आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो you will feel uncomfortable. Finally हमारा आता है behavioral ratings. इसमें क्या होता है, आपके near and dear one से ही आपके behavior की rating ली जाती है, ठीक है। जैसे अगर सब्सटेंस अब्यूज में ऐसा बहुत होता है कि उनसे पूछो कि आपने लास्ट सब्सटेंस कब यूज किया था, they'll say मैम हो गए 6 महीने हो गए, बट when you call their wife or their mother they'll be like मैम ये कल ही किया था इन्होंने। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल रेटिंग, आपके आसपास के लोगों की आपको बिहेवियर की रेटिंग देना, ठीक है। हाउ वेल यू कैन जज योरसेल्फ। इसमें दो इफेक्ट्स डिस्कस्ड हैं। हेलो इफेक्ट विच इज यू नो आप एक ट्रेट पे बहुत एम्फोसिस देते हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रिचनेस पे इनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो लॉयल नहीं है, कोई बात नहीं बहुत पैसे हैं कोई अच्छा वो अगर ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, कोई बात नहीं बहुत पैसे हैं। जो ये टाइप के मतलब ये इस टाइप का आप एक ट्रेड पे बहुत फोकस कर रहे हो, तो दिस इज हेलो इफेक्ट, ठीक है। उनकी जॉब अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं बहुत पैसे, सो हेलो इफेक्ट है ये, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। एज द नेम सजेस्ट्स यू विल यू नो मोर लाइकली टू अवॉइड एक्सट्रीम पोजिशन। 1 और 5 आप टिक नहीं करोगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। 2, 3, 4 हमको लगता है कंफर्टेबल है, यही करते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन इज अ गुड मेथड। ये आपको बोला होगा क्लास में भी कि नॉमिनेट कर दो मॉनिटर के लिए 5 बच्चों को, तो वेयर पब्लिक डिसाइड्स कि चलो भाई 3-4 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं। इलेक्शंस में भी होता है, नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं ना कैंडिडेट्स। और सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, फाइनल टॉपिक जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है। ये जी टेस्ट आप ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है, व्हाट विल यू डू, दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। एमबीए में इंटरव्यूज जब लेते हैं तो ये बहुत पूछते हैं सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट कि अगर ये यू नो स्टॉक्स में ये हो गया वो हो गया, आप इसको कैसे डील करोगे। हॉस्पिटल्स में भी बहुत पूछते हैं कि अच्छा अगर हार्ट फेलियर से पेशेंट आया है, अच्छा ये भी उसका पैरामीटर ऊपर नीचे है, उसकी एज भी इतनी है, उसको कोमॉर्बिडिटी भी इतनी है। ये सब पूछते पूछते सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट लेते हैं कि कैसे बंदा स्ट्रेस पे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है।
here we finish this chapter, and I hope I was able to explain it well to you. If you have any questions, leave them in the comment box. Subscribe to the channel, and thank you for listening to me.